students, welcome to today's session. Today we are going to do session number 3 of the chapter French Revolution. Now I hope you guys are all safe and sound because I am, and let me know in the comment section कैसा जा रहा है आपका quarantine. ठीक है, and I hope आपने इसको देख लिया है. वेदांतु का live quiz होता है ऐप पे 6 p.m. every day. So if you haven't checked it out, please do. You will love it. I am not kidding. चलो जल्दी से मैं बताती हूँ प्रीवियस सेशन के आंसर. 14 जुलाई 1789 नेशनल असेंबली इंडोर टेनिस कोर्ट. जो बच्चे सोच रहे हैं ये किस चीज के आंसर्स हैं, यू हैव टू सर्च फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन सेशन नंबर 2. यू विल फाइंड दीज वन मार्कर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आफ्टर एवरी सेशन बिकॉज दिस इज उमंग सीरीज ऑफ एसएसटी एट वेदांतु चैनल 9th and 10th. चलो लास्ट टाइम होमवर्क क्वेश्चंस का जवाब जिन्होंने सबसे जल्दी दिया था वो है विजय, राखी एंड सर्वेश. If you guys also want to be on the screen in the next session, don't forget to subscribe to the channel, like the video, and whatever questions I give you at the end of the class, you just have to put them in the comment section with your answers, right? आज का इंडेक्स है ये. अच्छा मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ. लास्ट टाइम हमने देखा कि फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया एंड फाइनली किंग लुई एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड everything was finally getting back on track. अब क्या हुआ? Now what happened, you know, King Louis the 16th, in front of everybody, he did accept the constitutional monarchy, but secretly he went into secret negotiation with the king of the Prussia. Now you will ask me, ma'am, why only king of the Prussia? Because Bacha king of Prussia was a very important and a very very powerful person back then. So before he went to king of Prussia and सारे के सारे राजा लोग मिलके ना, all the monarchs together were trying to suppress the French revolutionary in the France. Why? Because they were scared. They were scared that if this is happening in France today, same thing is going to happen in the other states later. So सब मिलके ना revolutionary लोगों को दबाना चाहते थे. But before the king and his allies could do anything, National Assembly got to know about it. और नेशनल असेंबली ने कहा कि हम वॉर डिक्लेयर करते हैं अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. नाउ यू विल आस्क मी, मैम, प्रशिया मेक्स सेंस, व्हाई ऑस्ट्रिया? डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू मैरी एंटोनियट, द क्वीन ऑफ द फ्रांस, शी बिलोंग टू ऑस्ट्रिया. और मैरी एंटोनियट जो है ना, हर लाइफस्टाइल वाज सो लैविश एंड सो रॉयल दैट द फ्रेंच सिटीजंस यूज्ड टू हेट हर. तो प्रशिया भी गया, ऑस्ट्रिया भी गया. नेशनल असेंबली ने 1792 में कर दी वॉर डिक्लेयर. नाउ this was a very different kind of war. It was a war with the kings and aristocrats, मतलब कि rich people. It was a war between the common people and the rich people, the powerful people. और इसी war में thousands की तादाद में thousands of volunteers joined the army because now it was a war of a class, war of pride. And you know what? Like any other war, people made a lot of patriotic songs. The one patriotic song which got very very famous in the French Revolution is Marcellus. Marcellus एक जगह का नाम है. वहां के लोगों ने बहुत ज्यादा तादाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, आर्मी में पार्टिसिपेट किया था. एंड दिस सॉन्ग Marcellus was composed by a poet named Roger de Lisle and it was sung by everybody. और जब लोग इसे गाते थे ना तो उन्हें पेट्रियोटिक फील होता था, नेशनलिस्ट फील होता था. टू कॉमेमोरेट द सॉन्ग लेटर जब फ्रांस एक नेशन बन गया तो ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया. तो इतना फेमस है ये सॉन्ग. अच्छा, बहुत सारे लोग थे, पॉलिटिकल क्लब्स भी थे. पॉलिटिकल अवेयरनेस जब बढ़ रहा था फ्रांस में, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस, पीपल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट दे डोंट रियली नीड टू बी अंडर आवर रूलर, राइट? और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 का, दैट हैड ओनली गिवन पॉलिटिकल राइट्स टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बेसिकली मेन हु हैड प्रॉपर्टी. इसीलिए some people who did not belong to the prosperous section of the society, they were feeling, उन्हें लग रहा था कि they should continue with the revolution. And exactly वैसा ही हुआ. There was a very very famous club in the French Revolution known as Jacobin Club, political club था. इसके जो members हैं वो less prosperous section से आते थे. इसके साथ साथ women were also very actively taking participation into the protest. वो अपने clubs बनाती थी, सब कुछ करती थी, but उनका कुछ फायदा नहीं होता था. विमेन का केस हम अगले सेशन में पढ़ेंगे. अभी जानते हैं जैकोबिन क्लब के बारे में. तो मेंबर्स, जैसा कि मैंने बताया, दे बिलोंग टू लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लाइक शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, प्रिंटर्स, डेली वेज वर्कर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑब्वियसली क्लब है तो एक लीडर होगा. लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. बच्चा, दिस नेम आई वांट यू टू रिमेंबर बिकॉज यू विल बी हियरिंग दिस नेम अ लॉट लेटर. सो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर. Easy सा concept है. If you can't remember the entire name, just remember the surname, Robespierre. Okay, that will also do. चलो,
सो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स जो हैं दे वर प्लानिंग एन अपराइजिंग, ठीक है, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे, रेडिकल थे, इनका पहनावा भी बहुत अलग था, दे यूज्ड टू वेयर स्ट्राइप ट्राउजर्स, दे यूज्ड टू वेयर रेड कैप व्हिच वाज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी, और ये अपने आप को ना बाकी के फ्रेंच सोसाइटी के लोगों से अलग ड्रेसअप करते थे, because they wanted to put it across that even the poor people have power in them, metal in them. So they were, taking pride in the fact that they dress up like a poor person. Striped pajamas, striped trousers, red cap, and also sans culottes. मतलब कि knee breeches बिल्कुल नहीं पहनते थे like rest of the rich section of the French society. ठीक है? और अब ये uprising चाह रहे थे. बोलोगे मैम why are they planning a revolution again? बचा because पेरिस के लोग अभी भी खुश नहीं थे. They were having a lot of problems, and these people got a solution through Jacobin Club. So 1792 प्लानिंग स्टार्ट हो गई एक अपराइजिंग की, और ये सारे लोग इकट्ठा होके प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे, दे ऑल गैदर्ड एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग. और पता है जा कहाँ रहे थे? दे वर गोइंग टू द पैलेस ऑफ टुलेरिस. पैलेस ऑफ टुलेरिस बिलोंग टू द किंग लुई. तो वहां पे जा रहे थे और बहुत गुस्से में थे. दे वर वेरी वेरी एंग्री. They went and they killed all the king guards and they held king hostage. तो गार्ड्स को मार के किंग को हॉस्टेज रख लिया. गुस्सा देख रहे हो कितना है? अभी सिर्फ हॉस्टेज रखा था, अभी किंग को नुकसान पहुंचाया नहीं था. फिर फाइनली किंग को हॉस्टेज में रखे. दे डिड एन इलेक्शन in which again only the men above the age of 21 years were given the voting right. अब इसमें प्रॉपर्टी नॉन प्रॉपर्टी वाला कोई नहीं सीन था, सारे ही आदमी जो 21 साल से ऊपर के थे उनको वोटिंग राइट लिया था. लेकिन can you just spot one problem here? Women still don't have any voting right, right? चलो कोई नहीं, उसके बारे में आगे बात करेंगे. So elections हुए, so obviously एक नई असेंबली बननी थी. इस नई असेंबली का एक नया नाम था. The new assembly had a new name known as convention. And this assembly decided in 1792 that monarchy has to be abolished. Now we don't want constitutional monarchy. अब हमें full on constitution चाहिए, रिपब्लिक चाहिए. इसी तरीके से इस असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया और बोला कि मोनार्की खत्म हो गई है. Now, if monarchy has ended, then obviously monarch has to also end. The same thing happened. King Louis and King Louis's wife, Mary Antoinette, both were sentenced to death by the court. और reason पता है क्या दिया गया? Treason. Treason means that you have not been true to your own people. कोई झूठा reason तो नहीं था, but punishment काफी बड़ी थी. Then 21st January 1793, they were publicly executed at a palace. और इस एग्जीक्यूशन को पूरे फ्रांस की सोसाइटी ने देखा एंड पीपल अपलॉडेड आल्सो, पीपल वर हैप्पी अबाउट इट. तो देखो कितना गुस्सा होगा फ्रांस में. अभी हम आगे चलेंगे और नए व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले वी सैट के बारे में बता देती हूँ. वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, डोंट फॉरगेट टू गिव इट इफ यू हैवंट गिवन इट ऑलरेडी. It is from grade 6 to 13th and it's amazing. The registration is completely free. ठीक है? अभी आता है वो व्यक्ति जिसके बारे में मैं आपको बोल रही थी कि नाम नहीं भूलना है, नाम भूल भी जाओ तो सरनेम नहीं भूलना है. The reign of terror. Now the Jacobin government was in picture. And who was the leader of the Jacobin government? Our Maximilian Robespierre. तो basically फ्रांस का रूलर बन गया Maximilian Robespierre. And he was a very radical person. He believed in a policy of severe control and punishment. कोई भी अगर उसके अगेंस्ट जाता था, anybody if they will go against Maximilian, no matter he's a friend or an enemy, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर कोई भी उसके अगेंस्ट जाता था, they will be put for a trial. कोर्ट में ट्रायल चलता था और अगर गलती से वो गिल्टी प्रूव हो गए तो डेफिनेटली उनको डेथ मिल जाती थी. So Maximilian Robespierre was punishing and not barring anybody from the punishment. और पता है डेथ भी बड़े इनोवेटिव तरीके से मिलती थी. एक मशीन हुआ करती थी जिसका नाम था गुलोटिन. गुलोटिन मशीन आपको स्लाइड पे पिक्चर में दिख रही है. इट हैड a blade and two poles, and this blade के through the person would be beheaded. I know थोड़ा क्रूअल है, but that was what was happening in France. Now रोबेस्पियर के साथ और भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. He believed in extreme form of equality. वो सोसाइटी में एक्सट्रीम इक्वालिटी लाना चाहता था. इसीलिए फर्स्ट पॉइंट इज दैट ही पुट अ सीलिंग ऑन द वेजेस एंड द प्राइसेस. मतलब कि मान लो इफ बनानास आर सपोज टू बी 100 rupees per dozen, then 100 rupees per dozen only they would be. They won't be for more than that. So सीलिंग लग गई थी वेजेस पे भी, प्राइसेस पे भी. Point number 2, everything was rationed, everything's price was very very fixed. bread हो, मीट हो, कुछ भी हो. In fact, in bread's case, जो फ्रांस का staple food है, he had produced a equality bread. Equality bread का मतलब pain de egalite. If
You have to eat a bread, you have to eat this bread only. No matter you're a poor person or a middle class person or a rich person, you have to eat the same bread to maintain the equality. Point number 4, ये सबसे गलत चीज हुई churches को. Don't, he tried to go against people's faith. He converted all the churches into barracks or you can say offices. अब लोगों को गुस्सा आना शुरू हो गया था. ठीक है. In fact, he had a problem with the titles also. फ्रांस की बात हो रही है. It's a royal country. It's a fancy country. People used to address each other with like sir and madam. He abolished all of that. He said you only have to call citoyen or citoyenne, yani male citizen or female citizen. No other titles was supposed to be there in the French society. Now, अब इतना सब कुछ हो रहा था तो obviously Robespierre finally started losing his own support. Even उसके खुद के पार्टी के लोगों को ना वो पसंद आना बंद हो गया था. तो finally पता है क्या हुआ? Finally, the machine that he used to use to punish other people, with the same machine, he was killed. He was first convicted और फिर 1794 में अरेस्ट होके उसे डेथ सेंटेंस दे दिया गया. He was also guillotined. So this was the fate. देखो फ्रांस किसी को स्पेयर नहीं करता है. लेकिन अब when the king Louis is dead, when Maximilien Robespierre is dead, now फ्रांस की सिचुएशन बहुत अनस्टेबल होने वाली थी. और इस अनस्टेबल फ्रेंच पॉलिटिकल सिचुएशन से एक नया दौर शुरू होने वाला था. जैकोबिन गवर्नमेंट गिर चुकी थी और अब जो है पावर में मिडिल क्लास, वेल्दी और मिडिल क्लास लोग आ गए थे. नया कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एंड दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अगेन गेव द वोटिंग राइट्स ओनली टू द प्रॉपर्टी वाले लोग, ओनली टू द प्रॉपर्टी मेन. विमेन स्टिल नो राइट. ठीक है. दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बन गई थी. व्हाई? बिकॉज दे थॉट अगर एक रहेगी, इफ देयर वुड ओनली बी वन, देन मे बी देयर कुडंट बी अ बैलेंस ऑफ पावर. तो बैलेंस ऑफ पावर के लिए दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बना चुकी थी. एक का नाम था डायरेक्टरी. डायरेक्टरी में थे 5 लोग, लेकिन डायरेक्टरी जो थी ना, दैट वाज मोर डोमिनेटिंग. एंड ये जो डायरेक्टरी है, इसी की वजह से फ्रांस में बहुत क्लैशेस होते थे बिटवीन द डायरेक्टर्स एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. And overall, if you see, the French political situation was very volatile, vulnerable and unstable. और इसी पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से जो क्रिएट हो रहा था फ्रांस में, हमारा नया हीरो पिक्चर में आ सका. नया हीरो का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट. कौन था ये? मिलिट्री डिक्टेटर था फ्रेंच सोसाइटी में और इसने फ्रांस को बाकी के कंट्री से, व्हेन अदर कंट्रीज वर ट्राइंग टू अटैक, ही सेव्ड फ्रांस. अच्छा, क्यों अटैक हो रहा था? एक्चुअली ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम बना, तो व्हेन फ्रेंच पीपल वर फाइटिंग अमंग ईच अदर, द अदर कंट्रीज वर पाउंसिंग अपॉन फ्रांस. ओके, कि कब फ्रांस को अपने कब्जे में कर लें. तब फ्रांस को एक हीरो की जरूरत थी. वो हीरो बना नेपोलियन बोनापार्ट. बट द हीरो, आफ्टर सेविंग द फ्रांस, ही हिमसेल्फ बिकेम अ मोनार्क. जो पढ़ोगे आप क्लास 10th में. इस सेशन के लिए था इतना ही. मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस हैं आपके ये. First question is, which period is known as the Reign of Terror? Don't forget to let me know about the answers in the comment section. Point number 2 is, किस चार्ज पे राजा साहब को और रानी साहिबा को मार दिया गया था? That you have to tell me. And there is also a homework question, बच्चा. Your homework question is कि 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को क्या डिक्लेयर किया गया था? रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, डायरेक्टरी और मिलिट्री डिक्टेटरशिप. So all these 3 questions you have to let me know in the comment section. Entire history, in fact entire SST we would be doing through this Umang series. So if you have liked the video, like the explanation, don't forget to like the video. And also whatever you feel I should be changing or whatever you feel we need more in the Umang series, आप ही मुझे बताओगे. You have to tell me through your comments. So don't forget to comment. Don't forget to subscribe to the channel. And I hope all of you are smiling because that's very necessary. I'll see you next time. Till then, take care.